then Veda taught you truth, knowledge and infinity. So you can realize infinity in the form of cosmic energy and be one with that. Try to take deep breath and meditate on breath and visualize you are receiving energy from infinite source. There is only infinity surrounding your body. There is nothing but infinite energy. In Veda there is one other message, that our body is nothing but projection of this infinity, and yourself is nothing but projection of same infinite consciousness. So as a vessel is in ocean, and inside and outside of vessel there is nothing but water. And Veda taught that in the same way, inside and outside your body there is nothing but that supreme cause. And you are living in that supreme cause. As a vessel is in the ocean. Okay? Be aware about that supreme cause, subtlest cause of your life. That is infinite. So try to meditate on that infinity. Automatically your mind will be thoughtless and stable too, and you will achieve peace. If you have any mantra, you should relate mantra with your breath. And pure attention and listen that sound and watch your breath mentally. Be aware, meditation is mental work, not physical. Okay? So with deep breathing, with holy sound, with attention on the breath, and being aware about infinite source. If you will do this practice, very soon, one day you will achieve that highest level of consciousness. This process is called Mahayoga. 4 kinds of yogas are included in one process. Hatha Yoga, Mantra Yoga, Lay Yoga and Raj Yoga. In Upanishad, this technique is very high technique and very mystical too. So you should try to do it, meditate some minutes. Then you will recognize real satsanga. Being one with truth. That is the meaning of satsanga. Always take deep breath and watch your breath, chant your mantra with breath and try to listen that sound mentally and watch mentally too. And be aware about infinity.
Okay, now try to recite pranava, create long sound with me 3 times. Your 3 bodies, gross body, subtle body and causal body, and you think that you are elevating your consciousness from these 3 and you are merging into source of consciousness, that called supreme consciousness, and pay your attention, recite 3 times pranava with me. Create long sound. ओम भर्गोश्च तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानुदेव सवितुर्दुरितादिपरास्व यद्भद्रं तन्यास्व। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् अद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भर्गोऽस्व तस्मै वै नमो नमः। ओम तस्मै वै नमो नमः। May God bless you all. May He lead you all from darkness to light, from unreal to real, from death to immortality. May He shower upon you all His divine grace. May He bestow upon you all His divine love and peace. Okay. Yeah, I am going to give my talk in Hindi, but I will indicate something. Be aware about your meditation. Okay? Purpose of religion is to achieve unity with Godhead. Be aware. But this is the purpose of life too. Religion means way of realization of ultimate truth. Okay? Religio word is Latin word, and its meaning is turn back. Back to your own source. So, through which process you are approaching your own source, that process is called religion. Okay? If your whole religious activities are related with the external world, and you are not properly approaching to Godhead, your source, you are not a religious person. You can be a follower of any religion, that is another thing. But being religious, this is totally different thing. So our Shastras, Vedas and Puranas and Bhagavad Gitas and all Shastras, all great seers taught this highest method, and they declared there Nanya Pantha Vidyate Ayanaya, there is no other way beside this. Through meditation,
through introspection, you can reach your cause, your source. Okay? Meditation means not to be unaware or enter into dark, but meditation means to be fully aware, perfectly aware, and be one with Supreme Cause, and realize our truth. Okay? Some people are thinking when they are meditating, closing eyes, they are entering into dark, okay, and become unconscious. So unconscious state is not meditation. That is a defect in meditation. Okay? But meditator always live full conscious state and be fully aware about the truth. But be free from this limitation too. Okay? This confined form. As you are limitized yourself into this small structure, body, be free from this structure and be one with Supreme Cause. As I was indicating that you are receiving breath from infinite source. Not one person, but each person, all beings, okay, receiving that life energy from one source. So physical state too, you can recognize, you can realize unity in diversity. Okay? Your physical structure is nothing but projection of this phenomena. So if you will, analyze all these aspects of your life, you will find out there is no individuation, and there is no individual entity too. Okay? As you can see bubble on the ocean, and bubble always sprung from ocean and stay from ocean and merge into ocean too. And the same story, every person have. Our body is nothing but like a bubble appearing from this ocean of energy and sustaining into ocean of energy, and in the end it will merge into ocean of energy too. Okay? So when you meditate, be aware about this truth, be aware about infinity, and try to merge your little entity into cosmic form. Okay? In Veda there is a hymn, as river enter into ocean and become one with ocean, the same way this jiva enter into God and become God. Okay? In Ramayana also, Saint Tulsidas wrote, Sarita jala jala nidhi mahu jai, hoi achal jim jiva hari pai. And river is running always, running without resting. But when that water enter into ocean and become calm and quiet, and before reaching there, river can't take rest. And same story is related with our own life too. Without being one with Supreme Cause, we can't take eternal rest, okay? Permanent rest. So be one with that and try to meditate. This is very essential part of religion. Okay? And nowadays in these countries, lot of people, are following Indian seers' advice, and they are,
practicing all these process. And by birth you have such kind of instinct in your life, because you came from India and you have same impressions in your mind too. Okay? So if you will do it, then you will be happiest person in the world, and you can be light for other people too. This is the purpose of meditation. This is real purpose of religion. Okay? So try to follow it. Now I will start my talk in our own language. Now, what do you want to listen, my boy? आप गीता में पढ़ा रहे थे वो। गीता। गीता का कौन सा विषय सुनना चाहते? आप जो गुरुजी, आप कल कह रहे थे ना कि गीता के ऊपर आजकल मैं हाँ गीता के ऊपर वो तो कंटिन्यूस में नहीं चलेगा, दूसरे के 7 days रहना है। गीता का कोई खास पोर्शन कर्म योग जो आप लोगों के लिए उपयोगी हो, तो हम उसको आप लोगों को समझाएं। आपने कल स्थित प्रज्ञता के बारे में बताया था ना? वो तो अभी हम बता कर आए हैं। ऐसे दे दे बस। मुश्किल हो जाता है, इसलिए संयम की क्या डॉक्टर? कर्मण्येवाधिकार रखते थे शुरू करें। बहुत अच्छे। पहले भी कह रहे हैं, अगर साल साहब कि आप कर्म योग पर बोलिए तो मैं आप लोगों को 7 दिन कर्म योग सुना दूं। ठीक है? कर्म योग क्या है, इसको आप लोग बड़े आसानी से सुनिए। गीता के मुख्य 2 विषय, सांख्य और योग। गीता का जो संदेश है वो नया संदेश नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ में ये संदेश परमात्मा की तरफ से प्रथम उत्पन्न हुए पुरुष को मिला, और प्रथम उत्पन्न होने वाले पुरुष का नाम था व्योस्वान। व्योस्वान सूर्य को भी कहते हैं। इसको मैंने अपनी एक पुस्तक में बड़े डिटेल के साथ समझा करके बताया है कि परमात्मा का वह ज्ञान सूर्य में कैसे आया, कैसे सेंट्रलाइज हुआ, और सूर्य से फिर उनके पुत्र मनु में कैसे आया। ये गीता तत्वबोध नाम की मेरी पुस्तक है, उसके फर्स्ट चैप्टर में मैंने इसकी व्याख्या की है। लेकिन आप लोग ऐसे समझ लें कि दुनिया में जितना जीवन है, ये तो आप जानते हैं ना, वो सूर्य से है। और वेद का एक मंत्र है, अग्नि सोमात्मकम जगत। ये सारा जगत जो है, इसमें केवल 2 तत्व काम कर रहे हैं, अग्नि और सोम। अग्नि और सोम को वेद में जिसे अग्नि और सोम कहा गया है, उसी को रई और प्राण भी कहा गया है। प्राण और रई, उसी को गीता में क्षर और अक्षर कहा गया है। कई नामों से उसे वर्णन किया गया है। वर्तमान में उसे आप अंग्रेजी में समझें तो नेचर एंड स्पिरिट, एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस, इसी का पसार ये सारा विश्व जगत है। आपके शरीर में 2 पदार्थ हैं, एक तो परिवर्तनशील, जो पैदा होने से लेकर अब तक कितनी बार परिवर्तन हुआ है, रोज परिवर्तन हो रहा है, जिसको फिजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, पार्ट कहते हैं। और एक इसमें नित्य तत्व है, जो उसका दृष्टा है, आधार है। और वो आधार जो है, वो इस शरीर के परिवर्तन का ज्ञाता है, दृष्टा है, भोगता है, सब कुछ करता है, जिसको आत्मा कहते हैं। अब इसमें ये शरीर बनी तब आत्मा आई, या आत्मा के होने से शरीर का निर्माण हुआ, ये 2 प्रश्न हैं।
और ये प्रश्न बहुत पुराने हैं। ऋषियों ने इसका समाधान किया। कुछ ऐसे सिद्धांतवादी हैं, वो कहते हैं पहले शरीर बनी फिर इसमें आत्मा आई, लेकिन छांदोग्य उपनिषद में इसकी पूरी मीमांसा की गई और ये समझाया गया कि नहीं, पहले शरीर बनी फिर इसमें आत्मा नहीं आई, बल्कि आत्मा के नाते ही शरीर का निर्माण हुआ। आत्मा कारण है, बीज है, सीड है, और उसके होने से ये शरीर का निर्माण हुआ। उसमें एक सिद्धांत बताया गया कि जैसे बीज है, बीज को जब हम मिट्टी में डालते हैं तो बीज में एक पावर है, अट्रैक्टिव पावर जिसे कहते हैं, आकर्षण शक्ति। वो आकर्षण शक्ति से वो मटेरियल को खींच लेता है, यानी अपना फूड लेता है, और उसी बीज से स्प्राउट निकलता है, अंकुर निकलता है, और धीरे धीरे वो अंकुर उस यानी बाहर के रस को खींच करके बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है। पीपल का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, आप लोगों ने देखा होगा भारत में बड़े बड़े वृक्ष बनते हैं, और इतने बड़े वृक्ष का जो मूल सीड है वो बहुत छोटा सा होता है। बड़ का बीज बहुत छोटा होता है, राई के दाने से भी बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। इसी रूप से अपने शरीर रूपी वृक्ष के विषय में सोचिए आप, ये शरीर रूपी वृक्ष आखिर कैसे बढ़ गया, इसका भी यदि पता लगाएंगे तो आपको ये मालूम होगा ना कि एक बूंद सीमन में 5 अरब जीवाणु होते हैं, जिसे स्पर्म कहते हैं, और उसमें से एक होता है जो एक के साथ मिलकर के गर्भ बनाता है। एक बूंद का 5 अरबवां हिस्सा, जरा कल्पना कीजिए, अरब, करोड़ नहीं, लाख नहीं, एक बूंद का 5 अरबवां हिस्सा। और वेद में इसके लिए क्या कहा गया, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य भागो जीव सविज्ञ सचानंत्या कल्पते। सांख्य शास्त्र में इसको समझाया गया कि ये चेतन जो है, जो सूर्य की किरणें हैं ना, उन किरणों को कोई पकड़ नहीं सकता। एक किरण का कितना डायमीटर है, कितनी लंबी चौड़ी और मोटी किरण होती है, नोबडी कैन एक्सप्लेन इट। इसी रूप से जैसे सूर्य की किरण है, किरण वो सूर्य नहीं है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। इसी रूप से ये जीव जो है ये भी किरण है। किसकी किरण है? उस परमात्मा की, अनंत सत्य की। इसलिए इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, है ये सूक्ष्मतम स्वरूप में, लेकिन है। और उसके नाते, उसी सीड के नाते, बीज के नाते, ये आकर्षित करके अपने आप को मां के उदर से सारा मटेरियल लेता हुआ एक बेब बन करके, बच्चा बन करके बाहर आता है। आगे फिर उसी मटेरियल को ये ग्रहण करता हुआ ये आदमी बन जाता है, वृक्ष बन जाता है। इसीलिए इस शरीर को भी वेद में वृक्ष कहा गया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसृष्टु जाते। ऋग्वेद में, जो सबसे पुराना हमारा ग्रंथ है, ऋग्वेद में भी इस शरीर को वृक्ष कहा गया है। गीता में भी भगवान ने 15वें अध्याय में ऊर्ध्व मूल मधः शाक मस्वत्थम प्राहुरभ्यम कहा, ये जो है अश्वत्थ है। अश्वत्थ माने अ माने नहीं, स्व माने कल, थ माने स्थिति। जो कल इसी रूप में नहीं रहेगा उसको कहते हैं अस्वस्थ। और ये शरीर जो है ये अस्वस्थ है। अस्वस्थ माने पीपल, जो हिलता रहता हमेशा, गतिशील। और दूसरा इसका एक और आप समझिए, भगवान ने कहा ये ऊर्ध्वमूल है। अन्य वृक्ष जो है वो अधोमूल होते हैं। बीज को मिट्टी में डालिए तो वहां से अंकुर निकलता है, ऊपर चलता है। लेकिन ये विचित्र वृक्ष है। इसका जड़ जो है ये नीचे नहीं है, पांव में इसकी आत्मा नहीं रहती। इसका प्रारंभ पांव से नहीं होता, इसका प्रारंभ कहां से होता है? यहां से होता है। ब्रह्म चक्र है, ये ऊर्ध्वमूल है। ऊर्ध्वमूल अधः शाख, और यहां से लेकर के नीचे की तरफ इसका सारा प्रवाह चलता है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड से ये सारा नर्वस सिस्टम ऊपर से नीचे चलता है। तो ये ऊर्ध्वमूल है। ऊर्ध्वमूल माने कि विचित्र वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर है, नीचे नहीं है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने यानी लाइफ प्रारंभ होती है वेजिटेशन से, पौधों से लाइफ शुरू होती है, उससे भी नीचे से। वेजिटेशन उसे कहते हैं अंग्रेजी में, हमारे यहाँ उसे कहते हैं औषधि, वनस्पति। वहां से शुरू होती है लाइफ। लेकिन वो लाइफ बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे परिवर्तित होती है वैसे वैसे उसका स्वरूप बदलता जाता है। और जो वेजिटेशन लाइफ है उसकी जड़ मिट्टी में है, लेकिन उसके बाद में जब सरीसृप हो जाता है, वो कीड़े रूप में हो जाता है,
तो उसकी जड़ नीचे नहीं होती, वो ऐसे तिरछा हो जाता है, उसको त्रियक कहते हैं। त्रियक योनि सुना होगा ना? तो त्रियक माने तिरछी योनि। तो एक तो यानी वह है जिसकी नीचे योनि है या नीचे जड़ है, दूसरा वह है जो त्रियक तिरछा जड़ है जिसका, और तीसरा वो है जिसका ऊर्ध्व जड़ है। तो पहले तो वेजिटेशन लाइफ जो है वो तो नीचे जड़ वाली है, और जितने अन्य हैं कीड़े मकोड़े पशु पक्षी आदि, इनको त्रियक योनि कहते हैं, टेढ़ी योनि, इस ढंग से इनका रहता है। लेकिन उसमें मनुष्य है जो ऐसे हो जाता है तो वो ऊर्ध्वमूल हो जाता है। तो ऊर्ध्वमूल कौन है? परमात्मा। इसलिए सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ प्राणी जो है वो मनुष्य है, क्योंकि ये परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। परमात्मा ऊर्ध्वमूल है। पादोवस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतं देवे, वेद कहता है। परमात्मा ऊर्ध्वमूल है। सृष्टि का प्रारंभ नीचे से ऊपर नहीं होता, ऊपर से नीचे होता है, यानी सटल से ग्रोस के रूप में आती है, ग्रोस से सटल नहीं बनता। पहले इसका आविर्भाव कॉजल से सटल और सटल से ग्रोस के रूप में आती है, कारण से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूलता को प्राप्त होती है, इसलिए इसकी जड़ ऊपर है। तो ऊर्ध्वमूल मदः शाखा, जैसे ये विराट पुरुष ऊर्ध्वमूल है, ऐसे ये पुरुष भी ऊर्ध्वमूल है। इसलिए पुरुष शब्द का प्रयोग केवल मनुष्य के लिए करते हैं। वेद में शास्त्र में सर्वत्र पुरुष शब्द का प्रयोग मनुष्य के लिए करते। बैल को आप पुरुष नहीं कर सकते, किसी पशु को किसी पक्षी को मेल हो वा फीमेल उसको पुरुष शब्द से नहीं संबोधित कर सकते। लेकिन वेद में जहां पुरुष शब्द का प्रयोग है वो स्त्री के लिए अलग, और पुरुष वो स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है। वहां पुरुष माने पूर्ण, पूर्णम याति इति पुरुष, और वो किस रूप में आता है? वो स्त्री रूप में भी है और पुरुष रूप में, दोनों रूप में वो पुरुष कहा जाता है। तो वहां पर पुरुष माने आत्मा, चैतन्य, क्योंकि वो पूर्णता को प्राप्त हो गया। अब उसके पास सारे साधन हो गए। जो जो साधन परमात्मा के पास है वही साधन इस जीवात्मा को मिल गया जब मनुष्य बना तब। मनुष्य से इतर योनियों में वो साधन इसके पास नहीं है, इसलिए इसको स्वतंत्र कर्तृत्व भी नहीं है। दुनिया में मनुष्य से इतर कोई योनि नहीं है जिसमें आपने बहुत सोच समझ करके काम किया हो, या कोई ऐसा पशु पक्षी जो सोच समझ कर काम करता हो, प्लानिंग बना करके। जितने अन्य प्राणी हैं वो सब अपने इंस्टिंक्ट के अनुसार काम करते हैं। उनका खाना एक है, पीना एक है, रहना एक है, सब कुछ एक है। उनके लिए नियम बने हुए हैं, और किसके अंडर चलते हैं? प्रकृति के। उनका अनुशासन प्रकृति करती है। भारत का कुत्ता जैसे भूंकता है, अमेरिका का कुत्ता उसी भाषा में भूंकता है। भारत की गौएं घास खाती हैं तो अमेरिका की गौएं मांस नहीं खाती, वो भी घास खाती है। भारत के शेर मांस खाते हैं तो